Sahilpreet, Kamaljeet, Harshvardhan, बेटा turn on your webcam. Sahilpreet, Kamaljeet, Harshvardhan, otherwise I will remove you. Sahilpreet, Harshvardhan.
Okay, guys. Good morning. Good afternoon. So today we have the first class. So in this class we will discuss about the syllabus, blueprint of question paper, and all these things. Okay, guys. Show me thumbs up if you are hearing me and my concept is clear. Just show me the thumbs up. Okay, guys. Yeah, that's good. I am, first of all, I would say sorry to you because yesterday I was not well, so I have not taken the class. So I have not taken the class because yesterday I was not well. So I am sorry for that. So I think you have seen the screen is clear to you. So first of all, we have to discuss the pattern of the pattern. This is the bit of your blueprint of your question paper. You have the 10 units. How many units do you have? You have the 10 units and your subject code is 054. Your subject code is 054 and 80 marks paper and 20 marks theory. Paper consists of 3 marks. In the unit 1, nature and the purpose of a business. Unit 1 is nature and the purpose of a business, 16 marks, and it will take the 18 periods. Unit number 2, the forms of business organization, 24 periods. Unit number 3 and unit number 4 consist of 14 marks and 18 period each. Question number 5, unit number 5 and 6 consist of 10 marks and this is small unit, so it has 10 periods and 12 periods. So that 100 period and you will get the 40 marks. The part B also consists of 40 marks and it has 4 units. So 7th unit will be the source of business finance, 30 periods, and small businesses, 16 periods, consist of 20 marks. Internal trade, international business, 30 periods and 14 periods, 20 marks. So that will be the 40 and another 20 marks will be your project. So that will be the blueprint of your question paper. After the question paper, we will discuss this one, the designing of the question paper. So what is the design of your question paper is that designing of your question paper. So you will get the 20 MCQs. How many MCQs? In the question paper, you will get the 20 MCQs and short answer type question 1, you will get 5 question of that. And this consists of 3 marks. So it will be the 15 marks. It will be the 15 marks. Okay, guys. So 5 into 3, 15 marks for that. Another one, short answer type question, 4 marks. 4 marks question, 3 will come in your question paper. How many questions will come in your question paper? 3 questions will come in your question paper. That will be the 12 marks. Then come to the long answer type question that consists of 5 marks. That 3 question will come. Another one, long answer, again for 6 marks. That will be come 3 questions. So that will be the 18 marks. So 20 MCQ, 3 marks question 5, 4 marks question 3, 5 marks question 3 and 6 marks question 3. So that will be your blueprint of your question paper. You must know that. अब इसके बाद पॉइंट आता है बेटा कि हमें
कि कौन से जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनका आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, जो 3 मार्क्स है उनकी क्वेश्चन लेंथ क्या होनी चाहिए। उसके लिए भी बेटा मैंने आपको छोटा सा प्रिंट तैयार किया। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? बिजनेस स्टडीज। सो आंसर टू द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स मे बी 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। जो 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा बेटा वो 1 वर्ड का हो या 1 सेंटेंस का हो, इससे ज्यादा आपको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आएगा बेटा उसको 50 to 75 वर्ड्स में लिखना है, इससे ज्यादा आप मत टाइम वेस्ट करिएगा। आपको 50 to 75 मार्क्स का लिखना है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है 4-5 मार्क्स का, उसको आपको 150 वर्ड से ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, उसकी वर्ड लिमिट है 150। ओके गाइस, आफ्टर दैट आंसर द क्वेश्चन 6 मार्क्स। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसकी वर्ड लिमिट है 200 वर्ड्स। कितनी है बेटा? 200 वर्ड्स। और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और आपके साथ बेटा जो 1 to 8 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के होंगे आपके। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 1 मार्क्स से क्वेश्चंस कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पेपर में, वो टीचर टू टीचर वेरी करता है। ठीक है बेटा, सो इस पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस पे। सो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, सो इसमें बेटा कॉन्सेप्ट इंक्लूड है मीनिंग एंड द फीचर्स। तो आपके मीनिंग एंड द फीचर्स दोनों इंक्लूडेड हैं बेटा इसमें। सो इसमें आपको सब जो टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स इन इंडिया। बेटा व्हाट आर यू डूइंग? सो बेटा इसकी आपकी फर्स्ट वन जो है बेटा आपका क्या है इसमें, हिस्ट्री ट्रेड एंड द कॉमर्स इन इंडिया, इंटीग्रेशन बैंकिंग सिस्टम, राइजिंग ऑफ द इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग कम्युनिकेशन मर्चेंट cooperation, major trade center, major import and export, position of the India and subcontinent in the world economy। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा। सेकंड चैप्टर का टॉपिक है मीनिंग एंड द कैरेक्टर्स। थर्ड वन है बिजनेस प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, after that come to the point, objective of the business, classification of the business activity, industries and the commerce. After that industries type, primary, secondary, territory and meaning and the subgroups. Commercial trade, next topic is the commercial trade type, internal, external, wholesale, retail. Auxiliaries to the trade, banking, insurance, transportation, warehouse, communication and advertising। फिर बेटा है आपका बिजनेस रिस्क कॉन्सेप्ट, सोलो प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट, मेरिट एंड लिमिटेशंस। अनदर वन, फिर पार्टनरशिप्स आ गई बेटा आपकी। पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट्स, टाइप, मेरिट्स, limitation of the partnership, registration of the partnership form, partnership deed, type of the partners, partnership versus limited liabilities and the partnership,
ये दो टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट विल बी द कोऑपरेटिव सोसाइटीज and cooperative societies concept, merit and limitations. Next one is concept, merit and limitation, types, private, public and one person company concept. ये सारी चीजें हैं बेटा। फिर उसमें ही एक और टॉपिक है आपका प्राइवेट कंपनी वर्सेस द लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। ओके गाइस, इज इट क्लियर टू यू बेटा? After that, we'll go for formation of a company, stages, important document to be used in the formation of a company. The next topic we will study the choose of the forms of the business organization. After that, we have another one, unit 3, public, private and global enterprises. So in this unit, we will discuss about the public sector and the private sector enterprises concept. So इनको हम discuss करेंगे. Next one is form of the public sector and enterprises, the departmental undertaking and statutory corporates and the government companies. The global enterprises, features, joint and venture, public private पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। बेटा आप इसका चाहो तो मैं आपको स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा? तो आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। आपको चाहिए होगी, आप ये नोट करेंगे बेटा। ओके, आई विल शेयर द स्लाइड विथ यू। ओके, थैंक यू। फिर बेटा नेक्स्ट थर्ड में नेक्स्ट आपका होगा, हम आपसे डिस्कस करेंगे द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, corporation and the government companies, global enterprises, feature, joint venture, public private enterprises concepts। इन सब चीजों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट में आपके पास है बिजनेस सर्विसेज, मीनिंग, टाइप्स, बैंक टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग, करंट, रेकरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। फिर उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे बैंकिंग सर्विस विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू द बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग, टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट, इंश्योरेंस प्रिंसिपल टाइप, लाइफ हेल्थ, फायर एंड द मरीन इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट्स। इन सबको बेटा आपको नेक्स्ट टॉपिक यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। और उसमें एक पॉइंट और डिस्कस करना है आपसे, पोस्टल सर्विसेज, मेल रजिस्टर्ड, पार्सल स्पीड, कोरियर मीनिंग। इट मींस इसमें जो कुछ भी है बेटा वो सब आपका सुना हुआ है, समझा हुआ है, सिर्फ हम आपको आपकी जो नॉलेज है उसको इनहांस करेंगे। पोस्टल सर्विसेज क्या होती हैं आपको पता है, रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है, पार्सल्स क्या होता है, स्पीड पोस्ट, ये सारे जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स या यूनिट्स बताए ये सब आपका देखा हुआ समझा हुआ है, लेकिन इसको हम कलेक्टिवली आपको एक साथ बताएंगे। तो और ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। फिफ्थ यूनिट में मोड ऑफ द बिजनेस, ई बिजनेस कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट्स। फिर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओज आपको पता ही है, बीपीओज क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या, उनके नीड्स क्या है, स्कोप्स क्या है। सो मजा आएगा इसको पढ़ने में आपको। The concept of the social responsibility, cases of the social responsibility towards the owners, investors, consumer, employee, government and the community। इन सबको हम आपको से डिस्कस करेंगे बेटा अच्छे से। तो ये सब आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं आता है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है बेटा? फिर उसके बाद आते हैं हम लोग बिजनेस एथिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड द एलिमेंट्स। फिर एंटरप्रेन्योरशिप,
development, concept of the characteristics, need, process of the entrepreneurship, development, startup India scheme, way to fund startup, intellectual property rights, enterprises, all these things हम आपसे इसमें डिस्कस करेंगे. फिर लास्ट यूनिट जो है बेटा, सेकंड लास्ट यूनिट में हम आपसे इंटरनल ट्रेड मीनिंग एंड द टाइप ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, topic types of the retail trade, small scale fixed shops retailers, large scale retailers, departmental stores, chain stores, GST concepts and features. फिर 10th यूनिट में इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे पास 4 टॉपिक्स होते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड, कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट, एक्सपोर्ट्स, meaning and the procedure, import meaning and the procedure, documentation involved in that international trade, लेटर टू द क्रेडिटर. फिर हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव. ये बेटा आपका पूरा सिलेबस है जो हमने आपसे डिस्कस किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे आपसे. और उसके साथ बेटा आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस शायद आपके पास है नहीं है. सिलेबस है? डू यू हैव द सिलेबस? और आई विल सेंड यू द सिलेबस. ओके, आई विल सेंड यू द सिलेबस एंड दिस blueprint of the question paper. That's very important if you want, so you can click the picture of that also. And this is the marks distribution, that is very important. इसको आप देख लीजिएगा एक बार. इन सब चीजों को हमें डिस्कस करना है. और बिजनेस में जो हमारी बिजनेस की बेटा क्लास होगी उसमें हम टॉपिक वाइज सारे चीजें पढ़ेंगे और आपको बेटा हैंड होल्डिंग्स देंगे. हम आपको सारी चीजें अच्छे से समझाएंगे और उसके बाद आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको उनकी स्लाइड्स जो भी हम लोग पढ़ाएंगे आपको स्लाइड्स भी शेयर करेंगे. इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट. आपको सारी चीजें और आपके जो भी डाउट्स हो बेटा हम लोगों से आप डिस्कस कर लीजिएगा. जो भी आपके डाउट्स हो वो आप डिस्कस करिएगा और आपको बिजनेस पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और सारी चीजें जो आपके सराउंडिंग में बिजनेस की हैं वो आपको हेल्प भी करेंगी. ओके बेटा, अगर आपके किसी के डाउट्स हो तो बेटा मुझसे शेयर करो. इफ यू हैव एनी डाउट्स सो यू कैन शेयर मी. इफ यू हैव एनी क्वेरीज. नो डाउट. जैस्मिन, साहिल प्रीत, ईशान, सरनजीत, कमलप्रीत बेटा, पलक, इंदरप्रीत, ओके बेटा. तो फिर हम ऐसा करते हैं, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं आज. ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी. अदरवाइज टुमारो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1. आपको बुक लेके बैठना है. कल से हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा. आज और इंट्रोडक्शन आपको चाहिए मुझसे. कल से हम क्लास अपनी रेगुलर स्टार्ट करेंगे. आज मैंने आपका इंट्रोडक्शन, पूरी बुक का, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, ब्लूप्रिंट सब कुछ डिस्कस कर लिया है. और आज बेटा थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है. कल से हम इन सब चीजों को करेंगे. ठीक है बेटा, कल से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय.